about conformal mappings today. So let me have this first show you. If we suppose that there are two curves, let me draw a curve. Let this be some curve like this, and suppose we have another curve which crosses the curve C1 at certain point Z0. Suppose these are the curves intersecting at Z0. And we further suppose that these are smooth curves. And if suppose C1 has this parameterization gamma of t, and it is something gamma naught of t, and C2 also has a parameterization gamma 1 of t. Then since we assume that these are the smooth curves, we have tangents at each point, and in particular we will have a tangent to the curve C1 and similarly a tangent to the curve C2 at Z0, and let this be the tangent vector, and for this be the tangent vector to C2. And how do we define the tangent vector? The tangent vector at Z0 is defined as the derivative is given by this expression, derivative of this gamma naught, which is the parameter which gives the parameterization of this curve C1 at some point Z0 है, तो Z0 obviously अगर आप without reparameterization करके आप Z0 मान सकते हैं कि Z0 is equal to gamma naught of 0, and similarly you can assume it to be gamma 1 of 0. So this will be derivative at 0, and its tangent C2 का tangent क्या होगा? C2 का tangent vector will be given by, इसको यहीं पे रखते हैं 0, और इसका डेरिवेटिव आएगा गामा 1 प्राइम एट 0. तो अब ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स हैं, इनके ये मीट कर रही हैं, दे आर मीटिंग, दे आर फॉर्मिंग एन एंगल एट Z0. तो इस एंगल को मेजर हम करेंगे. लेट दिस एंगल बी सम थीटा. तो दिस एंगल between these two tangent vectors is known as this angle theta is called the angle between the curves C1 and C2. तो इस तरह से दो कर्व्स के बीच में हम एंगल डिफाइन करते हैं. व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू कर्व्स? स्मूथ कर्व्स होनी चाहिए, क्योंकि सो दैट हम टेंजेंट वहां डिफाइन कर पाए. तो द एंगल बिटवीन द स्मूथ कर्व C1 and C2 is the but let me complete first this line, that it is the angle between the curve C1 and C2 at Z0, जहां पर वो intersect कर रहे हैं. And this is nothing but it is the angle between the tangents, the tangent vectors at Z0, with respective tangent vectors to C1 and C2 at Z0. ठीक है जी. तो जब भी आपको तो करो किसी कर्व का एंगल निकालना है, तो आप उसका टेंजेंट वेक्टर को कैलकुलेट करो. वो टेंजेंट वेक्टर्स के बीच में आपके पास जो एंगल होगा, दैट विल बी द एंगल बिटवीन द कर्व्स. अब हम क्या करेंगे? हम एक फंक्शंस कंसीडर करेंगे, क्योंकि वी आर अगेन इन C2, these curves are in C2, and suppose we have a function, and that function will map, just let me make space for another diagram here. So that function will map these curves C1 and C2 some other curves. थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ. Let me write this curve this, और एक कोई curve दूसरे में. ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है.
No. Let me clear this. ओके, चलो इस तरीके से रखते हैं। तो ये फंक्शन है आपके पास f कोई फंक्शन है, तो f will map these curves into another curves। वो मोस्टली कांस्टेंट होगा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट z डॉट का इमेज होगा ff z नॉट। तो ये कर्व्स अगर c1 और c2 आपके पास दे आर इंटरसेक्टिंग एट z नॉट, तो इनकी इमेजेस जो होंगी, तो लेट मी डिनोट द इमेज ऑफ कर्व c1 बाय f कंपोजिशन गामा नॉट, क्योंकि गामा नॉट इज अ फंक्शन, तो ये इसके साथ कंपोज करके ही नई कर्व बनेगी आपके पास। और दूसरी कर्व आपके पास होगी समथिंग f कंपोजिशन गामा 1। ओके, तो अब क्वेश्चन है कि अगर ये कर्व्स हैं आपके पास, तो व्हाट वी वांट नाउ कि हम इस एंगल को देखना चाहेंगे कि अगर थीटा वाज द एंगल बिटवीन this curve C1 and C2 at Z naught, what is the angle between and the transformed curves f composition gamma naught and f composition gamma 1 at f Z naught? तो पहली तो कंडीशन ये होगी कि आपके पास, क्योंकि यू वांट टू मेजर द एंगल एट एफ जेड नॉट, तो आपको टेंजेंट्स ड्रा करने के लिए you need to have that, आपके पास टेंजेंट्स यहाँ पे मिलने चाहिए। तो टेंजेंट आपके पास वेक्टर जो यहाँ होगा, दैट हैज टू बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व एट जीरो। अगेन रिपैरामीटराइजेशन से मानते हैं कि क्योंकि आपका पैरामीटर t का वैल्यू हम मानते हैं कि पैरामीटर t इज वेरिंग बिटवीन 0 एंड 1, सो दैट, और इसी तरह से इसका भी टेंजेंट यहाँ होना चाहिए, तो इट हैज टू बी f कंपोजिशन गामा 1 प्राइम एट 0। तो अब लेकिन इससे पहले व्हेन आई एम ड्राइंग दीज टेंजेंट्स, तो मैं ये अश्यूम कर रहा हूँ कि मैं ये टेंजेंट ड्रा कर सकता हूँ। ये आपको भी अंडरस्टैंडिंग होगा कि हर एक कर्व का टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आप रियल एनालिसिस का केस लीजिएगा। इन केस ऑफ रियल एनालिसिस, अगर आप मॉड फंक्शन का ग्राफ देखें, f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x को देखें, तो ये आपने पढ़ा होगा कि ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है फंक्शन। तो इसका ग्राफ जीरो पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होता है? ये क्योंकि डिफरेंशिएबल होने का मतलब है उस पॉइंट पे उसका टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जीरो पे इसके टेंजेंट यूनिक नहीं एग्जिस्ट करता, इट हैज सो मेनी टेंजेंट्स एट जीरो। ये हर एक लाइन इसकी टेंजेंट है। तो इसलिए ये एजम्पशन हम मान के चलेंगे कि आपका f और गामा नॉट इस तरीके से हूँ कि ताकि f का जब हम कंपोजिशन करें कर्व्स गामा नॉट और गामा 1 से, तो जो न्यू ट्रांसफॉर्म्ड कर्व्स हमारे पास बने f कंपोजिशन गामा नॉट और f कंपोजिशन गामा 1, तो न्यू कर्व्स भी स्मूथ रहें। ठीक है, तो फिर हमने ये मेजर करना है कि ये एंगल कितना होगा। दिस विल बी सम एंगल फी। ठीक है, तो अब हमारे पास आएगा ये एंगल कितना होगा, कैसे मेजर करना है वो मैं बता देता हूँ। तो फिर हम देखेंगे कि अगर फंक्शन इस तरीके से हो, इफ यू हैव अ फंक्शन f, if f is such that the angle that f preserves the angle, बट अब देखिए एंगल को प्रिजर्व करने की जब बात होती है, तो एंगल को प्रिजर्व करने की दो बातें मैं बोलूंगा। एक तो मैग्नीट्यूड में, क्योंकि एंगल जो हम अभी कंसीडर कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन भी है, तो आप इसको यू कैन से दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर को प्रिजर्व करना मींस वेक्टर के दो कंडीशंस होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड भी उसका प्रिजर्व होना चाहिए और एक उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो अगर ऐसा ना हो कि आपके पास C1 और C2 का जो एंगल है उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो f जब ट्रांसफॉर्म हो जाए ये कर्व्स अंडर f, तो हो सकता है एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। पहले क्लॉकवाइज थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, तो उसके अपोजिट हो जाए।
तो जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि वो एंगल प्रिजर्व नहीं हो रहा है इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन या इन सेंस, यूजुअली हम वर्ड सेंस भी यूज करेंगे, या अगर थीटा और फी की वैल्यूज अनइक्वल आती हैं तो भी हम, दैट मीन्स दे आर नॉट प्रिजर्व्ड इन मैग्नीट्यूड। तो लेकिन अगर फंक्शन एफ ऐसा हो जो एंगल को इन दोनों पैरामीटर्स में प्रिजर्व करे, इट प्रिजर्व्स एंगल इन मैग्नीट्यूड and direction, then f is said to be conformal at z naught। conformal वर्ड है जी ये, अब conformal at z naught। ठीक है, इस तरीके की अगर आपके पास सिचुएशन होगी तो फंक्शन f is known as conformal at z naught। is it clear to you? definition clear है? So now today we will see actually कि आपके पास कुछ conditions we will drive analytic functions में, what is the condition, kind of necessary and sufficient condition which tells you that a given function, given analytic function is conformal without drawing and without tracing the curves। ठीक है, तो but by the way अभी definition हमारे पास यही है कि अगर दो curves के बीच में जो एंगल है, अगर उसको डायरेक्शन और सेंस में वो फंक्शन प्रिजर्व करता है उस पॉइंट पे, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कन्फॉर्मल है। ठीक है, पॉइंट पे कन्फॉर्मल है। ठीक है, तो अब ये था पॉइंट पे कन्फॉर्मल क्या होता है, पूरे डोमेन पे कन्फॉर्मल का होगा फंक्शन। उसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं कि अ फंक्शन एंड अ स्मूथ का मतलब है इट इज डिफरेंशिएबल, and it is differentiable as much as we expect it to be differentiable। a smooth complex valued function f from a domain D onto another domain V, that is आपका फंक्शन एक डोमेन से दूसरे डोमेन तक डिफाइंड है, is said to be a conformal mapping। I'm not saying only that it is conformal, I'm saying that it is conformal mapping from domain from D onto V if we have the following things। This first thing, that f has to be conformal at each z naught in D। हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन कन्फॉर्मल होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि f एज अ फंक्शन फ्रॉम D टू V इज बाइजेक्टिव। ये 1 भी होना चाहिए और 1 भी होना चाहिए। तो अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन होगी तो वी विल सी के आपके पास सच अ फंक्शन इज अ कन्फॉर्मल मैप। तो और एक्चुअल में हमें जो कन्फॉर्मल फंक्शंस पढ़ने हैं वो हमें एक थ्योरम का हमें स्टेटमेंट तक पहुंचना है, दैट इज नोन एज रीमान मैपिंग थ्योरम। दैट इज अ वेरी, आई थिंक इट्स अ मच सेलिब्रेटेड थ्योरम इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो हमें कैरेक्टराइज करती है सारे के सारे, मतलब एक क्लास ऑफ डोमेन्स आपके पास वो कैरेक्टराइज करती है जो कन्फॉर्मल हो जाते हैं, कन्फॉर्मली इक्विवेलेंट हो जाते हैं एंड टू द यूनिट डिस्क। ठीक है, यूनिट डिस्क मीन्स अ डिस्क विद सेंटर 0 एंड रेडियस 1। बट ओके, बाद में जाएंगे हम, इस डेफिनेशन को भी फिलहाल ऐसे ही रखेंगे। बट आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, सीधी सी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप पहले ये एग्जांपल देख लीजिएगा। एक सिंपल सा फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस ए। तो look at this function, it's not a big deal to verify this is a bijection, और ये पूरी C to C डिफाइंड है, ये बाइजेक्शन है। दिस इज जस्ट अ ट्रांसलेशन फंक्शन, ये बाइजेक्शन है।
नो इशू। और ये कन्फॉर्मल क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें कोई भी अगर आपके पास ये फंक्शन कोई भी है तो व्हाट इट इज एक्चुअली डूइंग, कोई पॉइंट यहाँ पर है z है, तो ये z को जस्ट ट्रांसलेट कर रहा है, ये z वेक्टर है। तो आपके पास ये फंक्शन z वेक्टर को क्या कर रहा है? z वेक्टर को जस्ट ट्रांसलेट कर रहा है, z वेक्टर को समथिंग, अगर आपके पास z आपके पास x प्लस आई वाई है और a आपके पास समथिंग व्हाट यू से इट इज फॉर एग्जांपल a को मैं जस्ट x ले लेता हूँ, वो इमेजिनरी पार्ट इसका कुछ भी नहीं रखता हूँ, तो व्हाट विल बी z प्लस x, z प्लस a विल बी, सॉरी x नहीं रखता हूँ, इसको x नॉट रखता हूँ क्योंकि x ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस एक्स नॉट प्लस आई टाइम्स y हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपके पास z वेक्टर का यहाँ पर x था, तो ये y है, तो x प्लस एक्स नॉट क्या हो जाएगा? इट विल मूव अहेड, थोड़ा सा आगे मूव करेगा, इट विल बी x प्लस एक्स नॉट, ठीक है। तो y एज इट इज रहेगा, y इतना ही रहेगा, तो यू विल हैव अ वेक्टर हियर, ठीक है। तो अब आपके पास देखिएगा ये वेक्टर बन जाएगा, तो इससे क्या होगा? इससे आपके पास ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर इसको एंगल विद एक्स एक्सिस देखेंगे तो एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इससे एंगल बिल्कुल सेम रह रहा है और डायरेक्शन भी सेम रह रही है एंगल की, तो एंगल का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये यू कैन सी दैट दिस इज अ कन्फॉर्मल मैप, इसको जस्ट प्लॉट करके कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इट इज अ कन्फॉर्मल मैप एट ईच पॉइंट एंड आल्सो it is bijection, so we can say that this is a conformal mapping from C to itself. Or similarly you can look at this another function, this is called a dilation az, where a non-zero होना चाहिए, a zero हो गया तो then it's not conformal, this is also conformal map, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। बट हाँ, एक मैप अगर आप ये देखें f of z equals to z conjugate, अगर आप देखें दिस इज नॉट कन्फॉर्मल, क्योंकि क्लियर सी बात है कि एक अगर आपके पास ये वेक्टर है, मान लेते हैं दिस इज 1 प्लस आई, ठीक है, तो इसका अगर एंगल देखें तो ये 45 डिग्री है और ये पॉजिटिव सेंस में है। तो अगर आप z कंजुगेट देखेंगे, इस नंबर का कंजुगेट होगा, तो इस नंबर का कंजुगेट होगा 1 माइनस आई, और 1 माइनस आई जो है दिस इज z कंजुगेट ऑफ z, तो दैट मीन्स दिस इज f ऑफ z। तो इफ यू लुक एट दिस, इसका एंगल जो है, अब इसका एंगल है -45 डिग्री, दिस इज -45 डिग्री। तो अब देखिए एंगल्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इनका डायरेक्शन सेम नहीं है। तो ये क्या करता है, ये एंगल की मैग्नीट्यूड तो सेम रखता है ये फंक्शन, बट डायरेक्शन सेम नहीं रखता, तो देयरफॉर दिस इज नॉट कन्फॉर्मल एट, दिस इज नॉट कन्फॉर्मल, दिस इज नॉट कन्फॉर्मल, ठीक है, मैपिंग, दिस इज नॉट कन्फॉर्मल मैपिंग, ठीक है। इज इट क्लियर? Is it okay? Yes, sir. So in the next theorem we will prove a sufficient condition for a function to be conformal at a point. And what is that sufficient condition is in the form of a theorem which states that suppose f is analytic on a domain D, then f is conformal at some z naught in D if its derivative at z naught is not equal to 0. ये है जी सिंपलेस्ट फॉर्म। इंडीड मैं रिमार्क में लिखूंगा इसको कि दिस इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन कि कन्फॉर्मल होगा, अगर डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो फंक्शन हमेशा कन्फॉर्मल होगा उस पॉइंट पे, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर फंक्शन कन्फॉर्मल है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा नॉन जीरो होगा। वो बाय डेफिनेशन फॉलो हो जाता है क्योंकि कन्फॉर्मल है तो वी ऑलवेज टेक द नॉन जीरो टेंजेंट्स। तो इसके लिए मुझे एक लेमा चाहिए जो विच विल फॉलो बाय द
chain rule of differentiation. What is the lemma? Lemma says that let C gamma t, let इसको full parameterization लिखते हैं xt plus iyt, where parameter का जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में वेरी कर रहा है, be a स्मूथ करो, हम कह सकते हैं कि ये स्मूथ करो क्योंकि करो का एक एंड पॉइंट और एक टर्मिनल पॉइंट होता है, तो मैं टर्मिनल पॉइंट इसका रखता हूँ टर्मिनेटिंग एट z0, बट मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा कि टर्मिनेटिंग एट z0 मीन्स गामा ऑफ 0, ठीक है। तो हम स्टार्ट इसकी डायरेक्शन हम 1 से 0 की तरफ मूव करेंगे, एंड टर्मिनेटिंग एट z0 एंड FB analytic at z0, then the tangent vector to F composition gamma at FZ0 is ये है जी। टेंजेंट मतलब उसको डिफरेंशिएट करो, उस करो को 0 पे, एंड दिस टेंजेंट वेक्टर देखिएगा चेन रूल लगाओ आप इसको डिफरेंशिएशन करके, तो इट हैज टू बी derivative of f at gamma of 0, but what is gamma of 0 is z0, so it has to be derivative of f at z0 times derivative of gamma at 0। तो ये है आपके पास टेंजेंट्स का रिलेशन कि गामा नॉट का जो टेंजेंट है, गामा का जो टेंजेंट है z0 पे, तो उस टेंजेंट को अगर आप f के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करें z0 पे, तो यू रीच टू द टेंजेंट वेक्टर ऑफ f कंपोजिशन गामा at fz0। So we have to use this result and to prove that this function, whenever this function is analytic and has non-zero derivative at any point, तो वहाँ function हमेशा conformal होगा। तो proof इस तरह से, we suppose that we have a function which is non-zero, which has a non-zero derivative at some point. Suppose this f has non-zero derivative at z0, तो दैट इज, इसका मतलब डेरिवेटिव नॉन जीरो होने का मतलब है ये लिमिट z goes to 0, but anyways why do we need I don't need to write this limit here, just, and now I have to show that this function is conformal at z0। तो conformal के लिए what you do, you choose two curves, let gamma naught and gamma 1 be two curves terminating, better to write two parameterized curves, क्योंकि t मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ तो पहले लिख ही लेता हूँ कि they are parameterized curves, be two parameterized smooth arcs or smooth curves भी बोल सकते हो आप, smooth curves terminating at z0। That means we are considering two arcs, we are considering two arcs जो z0 से खत्म हो रही हैं, कहीं से आ रही हैं, they are ending up here या meeting at most, they are just touching each other, intersecting at this point, ठीक है। This is something gamma naught, this is gamma 1, and but this everything is within the domain D, जहां पर आपका फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, और डेरिवेटिव नॉन जीरो है, ठीक है। then the tangents to f composition gamma naught and f composition gamma 1, अब ये जब आप इसको मैप कराएंगे it will reach, क्योंकि f गामा नॉट का कोई इमेज बनेगा, let it be, मैं गामा नॉट का इमेज को ऐसे रखता हूँ, ठीक है, and
gamma 1 के इमेज को, this is f of gamma naught and this is f composition gamma 1. Okay, so function f will map gamma naught to f composition gamma 1 and gamma 1 to f composition gamma 1. This is the function from. So the tangent at this point is given by the lemma that we just stated. Then the tangent to gamma this at fz naught r इस तरीके से f composition gamma naught this at 0, this is derivative of f at z naught into gamma naught prime at 0, and f composition gamma 1 derivative at 0 is derivative of f at z naught dot gamma 1 at 0. These are the derivatives. Now, according to definition, we assume that when we measure the angle at z naught between gamma naught and gamma 1, and we have to take that the tangents at z naught to these curves, gamma naught and gamma 1 are non-zero. So, since gamma naught 0 is not equal to 0, or gamma 1 prime, this is the tangent to curve gamma 1 at 0, this is also not 0. तो अगर ये नॉन जीरो है तो ऑब्वियसली आपके पास जो टेंजेंट एफ कंपोजिशन गामा प्राइम है, दिस इज अ टेंजेंट टू एफ कंपोजिशन गामा एट एफ जेड नॉट, तो ये भी नॉन जीरो होंगे. तो पहली कंडीशन आपके पास होगी कि एफ जेड नॉट पे जो टेंजेंट्स हैं इन कर्व्स के रेस्पेक्टिव इमेज कर्व्स के, वो नॉन जीरो हैं. तो पहली कंडीशन. अब हमें एंगल्स मेजर करने. अब लेकिन एंगल देखिए कैसे मेजर करना है. ये अगर आपके, मैं थोड़ा सा एक डमी यहाँ पर प्लेन ड्रा करूंगा. तो ये अगर आपके पास प्लेन है, ओरिजिन यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ थोड़ा, एक सेकेंड लेट मी. ओके, या तो ओहो, ये तो सपोज दिस इज योर करो. अब करो का कलर फिर से मुझे लाना पड़ेगा. ओके, दिस इज हियर. तो हाउ डू यू मेजर द एंगल? I don't know whether you know this thing or not, but suppose what is this thing? This is x-axis and this is y-axis. So the angle, this is the tangent, and another tangent is this vector. So this angle is nothing but this is the argument. This is the argument of this gamma. This is gamma 1 derivative at 0. Okay, and let me choose another color. Yeah, I need to green. And another angle up to here, this green one, this is what? This is argument of gamma naught is vector का argument. So what is the angle? This theta. This theta angle is nothing but the angle between the curves gamma naught and gamma 1, and we are measuring this angle. So this theta, note here that it is argument of gamma naught at 0 minus this is argument of gamma 1 prime at 0. This is the angle. ऐसे ही मेजर करेंगे इन एंगल को. ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन कर्व्स गामा नॉट एंड गामा 1, और ये इसी सेंस में इट मस्ट बी इक्वल टू द एंगल बिटवीन एफ कंपोजिशन गामा नॉट एंड एफ कंपोजिशन गामा 1. सो हम इसको मेजर करते हैं. सो वी फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ एफ कंपोजिशन गामा नॉट minus the tangent at f composition gamma naught minus argument of tangent at f composition gamma 1. Let us see what happens. We have these formulas here, we will use it. So we have this argument of f composition gamma naught, a tangent at 0 minus argument of
f composition gamma 1 at 0. And recall one thing from the argument. See, I have told you already, you need to know all the basic things, because when we use those basic things, and if you do not have the sufficient information about those things, that might become problem for you. If you remember this formula, argument of z and w is given by argument of z plus argument of w. So here I'm using this fact, and so it is coming out to be argument of derivative of f at z naught, because ये argument tangent का है तो इसको tangent का formula use करिएगा. It has to be derivative of f at z naught plus it has to be argument of the tangent to gamma naught at 0. Similarly, I have to use the formula for this argument in the next second term also. It will be argument of derivative f at z naught minus argument of gamma 1 prime at 0. So what is left to you now, since you have some two terms are cancelling out, first and third, you are left with, as this is argument of gamma naught at 0 minus this is argument of gamma 1 prime at 0. So look at the first expression. This is the angle measured from f composition gamma 1 to f composition gamma naught, and it is same as the angle measured from gamma 1 to gamma naught. तो डायरेक्शन भी प्रिजर्व हो रही है, मैग्नीट्यूड तो इस इक्वलिटी से क्लियर है, डायरेक्शन भी प्रिजर्व हो रही है. अगर ऐसा होता कि आपके पास आर्गुमेंट ऑफ एफ कंपोजिशन गामा नॉट फर्स्ट टर्म है यहाँ पर, तो हो सकता है लास्ट में अगर आपके पास आर्गुमेंट ऑफ gamma 1 पहले आ जाता तो that would have changed the orientation, but nothing like that is happening here. So this expression means that the angle between f composition gamma naught and f composition gamma 1 is preserved in both sense and direction, and hence this proves that the function is conformal at z naught. So this implies that the angle measured from f composition gamma 1 to f composition gamma naught at fz naught is same as the angle measured from gamma 1 to gamma naught at z naught. It implies that the angle is preserved in both magnitude and sense, and so we say that f is conformal at z naught. So ये बड़ा important है यहाँ पर कि आपके पास डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए वहां पर. अगर आप मैं इसको रिमार्क में फॉर्म कर लेता हूं कि कन्वर्स, दिस इज अ रिमार्क, converse of this the above theorem holds trivially मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि के पास डेफिनेशन क्या कहती है कन्फॉर्मेलिटी की. कन्फॉर्मेलिटी की थ्योरम कहती है कि आपके पास कोई फंक्शन की जब आप कन्फॉर्मेलिटी की बात करते हैं पॉइंट पे, कोई दो कर्व जब कंसीडर करते हैं तो उस पॉइंट पे उन कर्व्स के टेंजेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए. ठीक है, गामा नॉट प्राइम एट 0 ये टेंजेंट होगा इसका गामा 1 प्राइम एट ये नॉन जीरो होना चाहिए. तो दैट मीन्स when you have that the function is conformal at z naught, that means जो इमेजेस होंगी तो ये इमेजेस के जो टेंजेंट्स यहाँ पर होंगे, तो इन इमेजेस के टेंजेंट ये किसी एक पर्टिकुलर कर्व की इमेज का जो टेंजेंट होगा
at 0 and what is the formula for derivative? Derivative का formula ये है f at z naught into gamma naught prime at 0. तो when it is a conformal at z naught, that means आप जब एंगल मेजर कर रहे हैं इन दो कर्व्स के बीच में, they have non-zero tangents here. Non-zero tangents होने के लिए आपके पास ये क्वांटिटी तो ऑलरेडी नॉन, ये तो पीछे से आप लेकर चल रहे हैं, ये टेंजेंट नॉट का या 0 है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स अगर ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा एफ कंपोजिशन गामा प्राइम नॉन जीरो है, तो दैट मीन्स डेरिवेटिव भी नॉन जीरो, टोटल प्रोडक्ट नॉन जीरो है ना. अगर डेरिवेटिव जीरो हो जाता तो टोटल प्रोडक्ट आपके पास जीरो होता, तो फंक्शन कन्फॉर्मल नहीं होता दिस एंगल. तो इसीलिए फॉलो के पास जब फंक्शन कन्फॉर्मल है तो उसका स्टेटेड और मैं इसको स्टेट कर सकता हूं कि लेट f be analytic on some domain D, then this function f is conformal at some point, conformal at some point z naught, if and only if its derivative at z naught is not equal to 0. Is it okay? Is it clear to you now? The sufficient, necessary and sufficient condition for an analytic function to be conformal. Is it okay? Yes, sir. So okay, so let us discuss a little application, not application we will have, but something. What do conformal maps do? They preserve the angles. So that means if you have two curves which are orthogonal to each other, you know what are orthogonal curves? They have the angle at 90 degree. They are 90 degree. Their angle, the angle between them is 90 degree. So what do they do? That what I was saying, that if you have orthogonal curves, then their images are also going to be orthogonal if you have a conformal function. Okay, because angles are preserved by orthogonal maps. So in particular, we have a very special thing about functions. Analytic functions. If suppose you have an analytic function f whose real part and imaginary part are u and v, is analytic in domain D. ठीक है, तो एक मैं यहाँ एक चीज डिफाइन करता हूँ कि जब भी आपके पास कोई फंक्शन होता है, इफ यू हैव एनी फंक्शन, इन पर्टिकुलर में आपके पास फंक्शन टू वेरिएबल्स वाला लूंगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होते हैं दे कैन बी ट्रीटेड एज फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है तो एंड सी कोई कांस्टेंट है आर में, देन द सेट इस फॉर्म का सेट z इन d, या z की जगह आई विल राइट इट टू वेरिएबल्स का ले रहा हूं तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेता हूं, बट आप z भी लिख सकते हैं, नो इशू. x y in d such that x y is equal to c. इस सेट को हम बोलेंगे इज कॉल्ड लेवल सेट, लेवल LEVEL लेवल सेट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेवल सेट ऑफ f at c भी बोल सकते हो आप, बट लेट्स रिस्ट्रिक्ट टू लेवल सेट. तो यूजुअली आपके पास u और v इस तरह के फंक्शंस होंगे, क्योंकि u रियल वैल्यूड है, v भी रियल वैल्यूड है, दे आर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स. तो we will form level sets from this u and v. So let us look at the level sets of these. Indeed वो level curves बनेंगी, क्योंकि आपके पास ये continuous functions हैं, तो they are going to be curves in C. But let us see. Okay, we will see that for any z naught in D, जहां पर आपके पास उसका डेरिवेटिव जो है नॉन जीरो है, तो डेरिवेटिव नॉन जीरो होने का मतलब है आपके पास फंक्शन कन्फॉर्मल है उस पॉइंट पे. ठीक है, तो हम क्या प्रूफ करूंगा मैं, वी क्लेम दैट द
level sets, or I will write here curves. एक ये C1 as set of those complex numbers in D at which u of z is equal to u at z naught, ठीक है, and another curve you will have C2 z in D where v of z is equal to vz naught. I will see that these two curves are orthogonal to each other. Orthogonal to each other. That means इनका angle जो है they form a 90-degree angle to each other. ठीक है, ठीक है, they are orthogonal to each other. ठीक है. So let me look at this. But mostly what we do, we will restrict only in a neighborhood of, क्योंकि आपके पास इस तरीके से z naught है, तो we will restrict ourselves to the neighborhood of this, क्योंकि इस neighborhood में एक special property आपके पास इस function की आएगी, क्योंकि इसका derivative यहाँ पर नॉन जीरो है. तो you have to keep this in mind. अगर आप inverse function theorem जानते हैं several variables की, तो good. If not, तो then you keep this result in mind. हम इसको complex में prove भी करेंगे कि अगर आपके पास डेरिवेटिव किसी एनालिटिक फंक्शन का नॉन जीरो होता है किसी पॉइंट पे, देन उस पॉइंट के एक नेबरहुड में, देन देयर इज अ neighborhood when I say that is, but you know also what is a neighborhood, you have done topology. There is a neighborhood of this z naught on which f is 1 to 1. ठीक है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी आपके पास एनालिटिक फंक्शंस की, कि जहां डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो उस पॉइंट पे आपके पास फंक्शन उस नॉट ओनली ओवर ऑफ द डोमेन बट उस पॉइंट के एक नेबरहुड में फंक्शन 1 हो जाता है. तो ठीक है, ओके, आपके पास फंक्शन नॉन जीरो है, तो अब आपके पास ये फंक्शन यहाँ पर 1 हो जाएगा. तो अब देखते हैं कि इस फंक्शन के नजदीक में आपके पास क्या पोर्शन बनता है. ठीक है, तो आई होप मुझे थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, मुझे आई डोंट वांट टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. So let me write this here. You have a function here. So suppose you have this function का वैल्यू f at z naught. तो f at z naught आपके पास क्या वैल्यू होगी? It has to be, क्योंकि रियल पार्ट u of z naught होगा प्लस i टाइम्स v of z naught. तो ऑब्वियसली इसका जब आप प्लॉट करेंगे तो यहाँ आपके पास कोई पॉइंट होगा, दिस विल बी u at z naught, क्योंकि रियल नंबर है, तो v आपके पास दिस विल बी v at z naught. ठीक है, तो अब देखिएगा ये इस सेट को देखते हैं. लेट्स लुक एट फर्स्ट दिस सेट z in D such that uz is equal to uz naught. दैट मीन्स ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर आपके पास फर्स्ट जो रियल पार्ट है फंक्शन का वो कांस्टेंट है. तो जब रियल पार्ट कांस्टेंट होगा तो आपके पास इस पॉइंट पे जो इस सेट का इमेज होगा इसका, तो इसका पूरा इमेज देखना है मुझे, एफ इस सेट पे अप्लाई करना है इसका पूरा इमेज. तो क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि ये आपके पास u z इक्वल टू z नॉट है, तो इट इज गिवन f ऑफ z है तो u z इज इक्वल टू z नॉट है, तो व्हाट यू विल हैव, आपका सिर्फ v z वेरी करेगा इसमें. तो v z जब वेरी करेगा तो वो तो वर्टिकली वेरी करेगा, तो दैट मींस इट विल बी समथिंग वर्टिकल लाइन हियर. इस सेट का जो इमेज होगा इट विल बी सम वर्टिकल लाइन हियर. तो सिमिलरली अगर आप अब उस सेट को देखें दूसरे, अगर आप इसी तरीके से, सो इट विल बी अ सम vertical line and this vertical line will pass through fz naught. और सिमिलरली आपके पास अगर इस सेट का दूसरे लेवल सेट का अगर आप इमेज देखेंगे z in D vz इक्वल टू vz naught, तो वहां पर आपके पास जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो कांस्टेंट होगा.
तो वो कांस्टेंट होगा तो आपके पास फिर सिर्फ यू जेड वेरी कर रहा होगा। तो यू जेड वेरी करना मीन्स आपके पास वर्टिकल कांस्टेंट है, तो आपका आप थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइन मूव कर रहे होंगे, ठीक है। दिस विल बी फॉर व्हेन यू जेड इज इक्वल टू यू जेड नॉट, और हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास होगी व्हेन वी जेड इक्वल्स टू वी नॉट। तो अब देखिएगा, दिस इज अ सर्टेन कर्व, as I said, this is some curve somewhere here, this is some curve, let it be gamma naught, and the another one is also vz equal to vz naught वाली भी कोई curve है, let it be something gamma 1। तो हमने इनकी इमेजेस फॉर्म करी, तो हमें क्या मिला कि गामा नॉट की जो इमेज है दैट इज अ सम वर्टिकल लाइन थ्रू एफ जेड नॉट, और गामा 1 की जो इमेज है, तो गामा 1 की जो इमेज है, गामा 1 की इमेज इज सम हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू एफ जेड नॉट। Is it clear to you? Is it okay? Hello, are you listening to me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so is it okay, or do I need to re-explain these things? Okay, sir. Okay, so now you have a one vertical line and one horizontal line. That means both the lines have an angle of 90 degree at f z naught. Horizontal और vertical line तो 90 डिग्री बनाएगी ना, 90 डिग्री। तो these are images, और आपके पास आपने क्या इमेजेस ऑफ गामा नॉट एंड गामा 1। तो आपका कन्फॉर्मल मैप क्या कहता है आपका, क्योंकि फंक्शन कन्फॉर्मल है जेड नॉट पे, कन्फॉर्मल मैप कहता है जो एंगल आपके पास गामा नॉट और गामा 1 के बीच में है वही एंगल उनकी इमेजेस के बीच में भी होना चाहिए। बट इमेजेस का एंगल कितना है, इमेजेस का एंगल आपके पास 90 डिग्री है, तो कर्व्स का एंगल भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो दिस प्रूव्स दैट आपके पास जो ये लेवल सेट्स हैं C1 और दूसरा C2, तो ये लेवल सेट्स में जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस डोम जेड नॉट के नेबरहुड में, वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है जी। तो दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। इज इट क्लियर टू यू नाउ? दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कन्फॉर्मल मैप्स, कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेवल सेट्स फॉर्म होते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट के, at points where function is conformal, those level sets are those level sets are those level curves भी आप उनको बोलते हैं, are conformal to each other। बोलिए, any question, any query regarding this? You don't have any question? No, sir. So, Okay.